Good morning students, welcome to you in your social science class. Today we will start our revision for practice paper 1 syllabus, that is chapter number 2. Chapter number 2 of economics will be there in your practice paper 1. Our first chapter, this first part of the chapter we will complete here, then later on second, third. The name of the chapter is Sectors of the Indian Economy. So, as first of all, we will do classification on the basis of economic activities. Economic activities are those activities which are performed for pay or profit. The economic activities can be divided into 3 parts. These are primary activities, secondary activities and tertiary activities. Primary activities are those activities which are conducted or performed with the help of natural factors. For example, growing of cotton. We want to grow cotton, we need water, soil, sunshine and so fertilizers, etc. So this is called primary activities which provide a base for secondary activities. So these activities are also known as agriculture and related activities because they are concerned with like dairy farming, fishing. So these are also known as primary activities, are also known as agriculture activities. Secondary activities are those, they are known as secondary, which are related with the manufacturing, These activities are known as secondary activities. For example, if the cotton grows in the primary sector, from that cotton cloth is being manufactured. From so many mills, the cotton cloth is being manufactured. So this sector is also known as industrial sector. Why it is known as industrial sector, student? Because this is concerned with the industries. क्योंकि ये इंडस्ट्री से कंसर्न है, इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटीज को इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम भी दिया जाता है. थर्ड वन इज टर्शियरी. Tertiary activities are those which provide service. After primary and secondary, these services, tertiary sector provides services. For example, transportation, banking. अगर जो कॉटन ग्रो हुई है सबसे पहले प्राइमरी में, फिर उसे कॉटन क्लोथ बना, उसी कॉटन क्लोथ को बाद में ट्रांसपोर्टेशन थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट क्लोथ इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So this provides services, this sector, tertiary sector provides services. Because of this is also known as service sector. इसका दूसरा नाम जो है वो है सर्विस सेक्टर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. और ये सारी एक्टिविटीज जैसे कि अर्लियर टाइम देयर वर टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड वॉशरमैन, ऑल वर देयर, बट एट प्रेजेंट देयर आर सो मेनी न्यू सर्विसेज स्टार्टेड लाइक कॉल सेंटर्स, ATM booth, etc., software companies. So all these activities are dependent on one another. This is known as interdependence. तो आगे है कि जब हम इन तीनों की बात कर चुके हैं तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर. कंपेयरिंग द 3 सेक्टर में ये दिया हुआ है कि हम चीज़ों को काउंट कैसे कर सकते हैं. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड हाउ डू we know the total production in each sector.
तो इसके लिए क्या होता है कि फाइनली वैल्यू चीज़ों की ले ली जाती है, और जो वैल्यूज़ भी ली जाती है वो वैल्यू फाइनल गुड्स की ली जाती है। इंटरमीडिएटरी गुड्स जो होती हैं उनकी वैल्यू नहीं ली जाती। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिस्किट के पैकेट की बात करें तो उस बिस्किट पैकेट में द वैल्यू ऑफ दैट बिस्किट पैकेट इज 50 रुपीज़, एंड देन in manufacturing of biscuit, all the ingredients which are being used like wheat, then sugar, and then milk, all these things values are also included in the biscuit packets value. तो उस सारों चीज़ों की वैल्यू उसी में ही आती है, तो हमने सिर्फ फाइनल चीज़ों की वैल्यू लेनी है। तो इस तरह से ये जीडीपी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, और जीडीपी क्या होती है? जीडीपी द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रोस के डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी गुड्स और जितनी सर्विसेज और जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन सारों की जो वैल्यू होती है एक साल की, दैट इज नॉन एज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। उसको जीडीपी का नाम दिया जाता है। तो ये काम जो है जीडीपी निकालने का, दैट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और उसके बाद अगर हम देखें कि आज तीनों सेक्टर्स में से सब हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हैं। अर्लियर द प्राइमरी सेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन जो सेकेंडरी सेक्टर था वो इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सबसे पहले लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे थे। उसके बाद जो है सेकेंड वन जो सेकेंडरी सेक्टर था दैट बिकम इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद जो नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर जो है आज इम्पॉर्टेंट हो चुका है। पिछले कुछ सालों से 100 सालों की ईयर्स की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मच इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री as well as providing employment to the people. So what are the reasons for the rising importance of tertiary sector? टर्शियरी सेक्टर की इम्पॉर्टेंस के रीज़न बताइए। तो टर्शियरी सेक्टर जो इम्पॉर्टेंट हो गया है उसका फर्स्ट रीज़न क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज दैट न्यू बेसिक सर्विसेज, क्योंकि ये सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल nowadays the people wants more and more good services and they are expecting from a government कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज उनको अच्छी प्रोवाइड की जाए। Good schooling should be there, school should be there, and then good hospital should be there, and other means transportation should be good. तो जो लोग आज बेसिक सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जितनी गवर्नमेंट अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती है उतनी ही वो गवर्नमेंट अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस गेन कर रहा है। सेकेंड वन, देन गेनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर बढ़ती है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वो कौन सा सेक्टर है? दैट इज टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि आज टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस गेन कर रहा है ड्यू टू राइज इन द इनकम लेवल। टुडे आज लोगों की इनकम लेवल जो है पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है कि एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से इकॉनमी हिट हुई है, लोगों की इनकम भी लो हुई है, बट अगर हम उससे पहले की बात करें तो एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम लोगों की इनकम राइज हुई है। तो जितनी इनकम राइज होगी उतने ही लोग अच्छी से अच्छी सर्विसेज की डिमांड करेंगे। अच्छी से अच्छी सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा? टर्शियरी। आगे हम एक और बात क्या है कि आज न्यू सर्विसेज स्टार्ट हो गई है। फोर्थ पॉइंट इज न्यू सर्विसेज लाइक टूरिज्म, देन आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑल दीज आर न्यू सर्विसेज। सो आज ये सर्विसेज जो है वो टर्शियरी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, इसीलिए ये सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। लेकिन एक हमारा ये पार्ट है उसके बाद कि टर्शियरी सेक्टर 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वन, द पीपल दोज हु आर इन माइनॉरिटी, थोड़े लोग हैं बट दे आर स्किल्ड, एजुकेटेड,
their income is also higher. They are teachers, doctors, lawyers, advocates, etc. तो ये लोग नंबर में तो कम है, लेकिन स्किल्ड हैं, उन्होंने अपने फील्ड में स्किलफुल है वो। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करें, मेजॉरिटी पीपल आर दोज इन ए कंट्री दोज आर अनस्किल्ड, दे आर नॉट एजुकेटेड, देयर इनकम इज ऑल्सो वेरी लो, एंड so their number is also more, they are like washerman, cobbler, like this. तो जो कि कैजुअल वर्कर आर देयर, उनका नंबर तो ज़्यादा है, वो स्किल्ड नहीं है, और लेकिन उनकी इनकम जो है वो कम है। तो इस तरह से टर्शरी सेक्टर जो है दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू टू टाइप ऑफ पीपल। लेकिन अगर हम ये बात करें नेक्स्ट पार्ट, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज, पहले जो था प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन आज जो है प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में चाहे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट दिस सेक्टर इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एज अर्लियर। जैसे ये पहले एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को दे रहा था, आज भी इंडिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, आज भी ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इन इंडिया देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड बट लेस आर रिक्वायर्ड। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंगेज हों, लेकिन उनकी ज़रूरत जो है कम लोगों की हो। लेकिन सपोज एक फार्मर है, फार्मर के आगे उसके दोनों बेटे भी उसी के साथ काम में लग गए। अब फार्मर को उसका जो फार्म है दैट इज़ नॉट टू मच, उसका 2 हेक्टेयर के करीब जो है उसकी जो ये फार्म है वो बहुत छोटा सा स्मॉल फार्म है। तो उसके साथ उसके बेटे भी काम कर रहे हैं, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनको। अगर खाली वन फार्मर कैन डू वर्क ऑन द सेम फार्म, ये ऐसा है जो है वो वर्क एफर्ट्स डिवाइड हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। लेकिन अगर फार्मर अकेला होगा तो वो 10 दिन में काम कर लेगा, अगर उसके बेटे और वाइफ भी होगी तो वो 4-5 दिन में 3 दिन में काम कर लेंगे, सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी प्रोडक्शन तो जितनी टाइम एक पर्सन से के काम करने से होगी उतने ही 4 लोगों से करने में होगी। तो दिस इज नॉन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा लोग तो इंगेज्ड है लेकिन ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ एक और अनएम्प्लॉयमेंट होती है ओपन, दिस इज विजिबल। ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो विजिबल होती है। सपोज यू हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड योर फैमिली और योर नेबरहुड, कि देखे होंगे कि कई सारे यंग मैन हैं आफ्टर गेटिंग देयर एजुकेशन, आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज नॉन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखती है। तो हम कहेंगे कि इंडिया में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर इन इंडिया। अगर हम रूरल एरिया की बात करें और अर्बन एरिया की बात करें तो दोनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाई जाती है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, और इसके लिए हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन दे, वर्किंग कैपिटल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, और इसके साथ साथ लोग जो हैं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घर में स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लाइक दाल प्रिक्योरिंग हो गई, हनी बी कीपिंग हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गई। तो और ट्रांसपोर्टेशन की वर्क को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके साथ साथ और कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, डॉक्टर्स जो हैं, टीचर्स उनकी रिक्वायरमेंट तो है बट आज उनका नंबर कम है। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे उनकी सो मेनी वैकेंसीज आर देयर इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो अगर एक प्लानिंग कमीशन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर सारे लोगों को सारे स्कूल्स में टीचर्स की प्रोविज़न जितने वेकेंट पोस्ट है कर दी जाए तो 20 लाख मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर में। ऐसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए और आर्ट एंड क्राफ्ट को डेवलप किया जाए, और तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने एक
किया है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये 2005 में जो एक्ट पास हुआ है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के ने पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट 1 और बढ़ा दिए गए, 600 डिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, जिसके अकॉर्डिंग 100 डेज जो हैं दैट एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑफ 100 डेज विल बी गिवन टू ऑल। जितना एम्प्लॉयमेंट जो है उसके 100 डेज जो है वो दिया जाएगा। 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है दैट विल बी गिवन, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा लोगों को। तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयमेंट के उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है दैट विल बी, अलाउंस होता है कि कुछ इनकम भत्ता वो दिया जाएगा। तो ये है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आगे जो है हम इकॉनमी को ऑन की जो है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से, कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम इकॉनमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर द वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, जिसमें वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, एंड देन सैलरी इज गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। और दिस सेक्टर जो है वहाँ पे एक एम्प्लॉय को डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ लाइक हॉलीडेज एंड मेडिकल लीव्स, अलाउंसेस, ये सारे जो हैं वो दिए जाते हैं। ऑल दीज आर गिवन। तो इस तरह से इस सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का नाम देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर होता है, जहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं और जो अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं, और एक एम्प्लॉय को उसकी ज्वाइनिंग से पहले एक ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिया जाता है। और इसमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ देयर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ देयर, वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ देयर। ये सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है विच इज़ ऑपोजिट ऑफ, which is not under the control of the government, and where the working hours are not fixed, security of job is not there, and Sunday is not a holiday, other holidays are not there, and employment depends on the condition of the needs of the employer। जो employment है वो employer के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर होता है, अनऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में फिक्स नहीं होते। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होती। यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं, PF वगैरह फैसिलिटी, और सब तरह की बात एम्प्लॉय को मेडिकल लीव, कैजुअल लीव दी जाती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब नहीं होता। तो अब ये जो कैसे आज इंडिया में ज़्यादातर वर्कर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। 1990s के बाद देयर इज़ द एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड मैनी प्राइवेट सेक्टर्स आर बीइंग सेट अप। तो बहुत सारे लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट दी जाए। उनको जैसे फार्मर्स हैं तो उनको डिफरेंट टाइप की, अगर हम बात करें कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, दे नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़, स्टोरेज। ऐसे ही अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर हैं उनको गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो इस तरह से जो वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और लास्ट हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का, एंड हाउ द इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। ऑनरशिप की तो हम बात कर चुके हैं, इसलिए ये है कि ऑन द इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे और कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस बेस पे हम इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। One is public sector, second is private sector. Public sector is that sector which depends on which is controlled by the government, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता।
पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा गाँव लोगों को फैसिलिटी देना चाहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवेज की बात करें, इंडिया में पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो ऑल दिस कम्स इन द पब्लिक सेक्टर विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज़ अंडर द प्राइवेट हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात करें, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें, एंड द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ये प्राइवेट सेक्टर होता है। आज पब्लिक सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि प्राइवेट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कि प्राइवेट सेक्टर एट रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, और बिल्डिंग ऑफ डैम्स की बात करें, बिल्डिंग ऑफ रोड्स की बात करें, और कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसे गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कम रेट पे लोगों को, पुअर लोगों को जो फूड और ड्रिंक्स, जो फूड ड्रिंक्स और राइस वीट ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और गवर्नमेंट आज पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंस गेन कर रहा है। उसका एक रीज़न क्या है? द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन समथिंग लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। जितना गवर्नमेंट एक ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेगी एजुकेशन हेल्थ पे, और उतना ही इस गवर्नमेंट को अच्छा माना जाएगा। तो आज इसलिए इन दीज बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी कैन से कि पब्लिक सेक्टर इज गेनिंग इम्पॉर्टेंस डे बाय डे। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड रिविजन वर्क वी रिवाइज द होल चैप्टर थॉरली। हमने पूरी तरह थॉरली ये चैप्टर कर लिया है। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर, कंप्लीट एनी वर्क पेंडिंग रिलेटेड विद दिस चैप्टर, and learn the chapter for revision test. Thank you.